Good morning, students. Now, today I am going to start chapter number 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. In this chapter, let us understand the morphology, structure, and the process of sexual reproduction in flowering plants. You all know that flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affections, happiness, grief, mournings, etc. आप सभी जानते हैं कि फ्लावर्स हम किसी ओकेजन पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए देते हैं. ओके वो फीलिंग्स आपकी हैप्पीनेस को भी शो करती हैं और आपके सैडनेस को भी शो करती हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट अ मॉर्फोलॉजी ऑफ टिपिकल फ्लावर. You all know that a typical flower has 4 roles. Okay? आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा है कि एक टिपिकल फ्लावर्स में 4 roles clearly distinct होते हैं. Outer role, that is called calyx. Okay? And each part of calyx, that is called sepal. जो कि ग्रीनिश आउटर आपको पिक्चर में अपीयर हो रही है, जो आपको सेपल्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के होते हैं. नाउ सेकेंड रोल ऑफ द टिपिकल फ्लावर इज कोरोला. ओके कोरोला हम फ्लावर के कलरफुल पार्ट को कहते हैं. ओके एंड ईच इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कोरोला दैट इज कॉल्ड पेटल. नाउ थर्ड रोल ऑफ द फ्लावर called androecium. It is the male part of the flower. Every part of androecium that is called stamen. Stamen it means individual part. हम एक part को stamen कहते हैं ना. अब मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ टिपिकल stamen की. This is stamen. Okay, the lower part of the stamen, thread-like part, that is called filament. Now upper part, that is bilobed structure, है ना. आप लोग ऊपर देख रहे हैं bilobed structure which is called anther. Now a typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca. They are diothecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ओके एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स के थ्रू हमारा जो एंथर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखाई देता है. जैसे आप लोगों ने सिंपली अगर वीट को देखा होगा तो एक ग्रूव के थ्रू उसके कोटिलिडन्स डिवाइड दिखते हैं, सेपरेटली नहीं बट सूचर्स अपीयर होता है. सिमिलरली एंथर भी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखता है विद द हेल्प ऑफ थीका. Now, a bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse sections of the anther. The microsporangia develop further and become pollen sac. They external longitudinally, although the length of an anther, and are packed with the pollen grains. Now, structure of microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया इट मीन्स सैक-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. अगर हम उसका ट्रांसफ़र सेक्शन देखें तो सैक-लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया विच कंटेन मेनी पॉलन ग्रेन्स. ओके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं. नाउ अब हम देखेंगे टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. In this picture 4 lobed are appear clearly, है ना, and it is generally surrounded by 4 walls layers. The outermost layer that is called epidermis. Second is endothecium.
Third is middle layer and the innermost layer of the microsporangia, that is called tapetum. The outer three walls layer perform the function of protection and they help in the hyacinths of anther to release the pollens. But the innermost layer, which is called tapetum, it nourishes the developing pollen grains. Okay, so that is called, these layer is called nurse layer. इसे हम नर्स लेयर के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये पॉलन ग्रेन्स की नरिशिंग में हेल्प करते हैं. ये पॉलन ग्रेन्स जब तक माइक्रोस्पोरेंजिया में ग्रो होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उनको प्रॉपर नरिशिंग प्रोवाइड करने का काम टेपेटम लेयर का होता है. सो सेल ऑफ द टेपेटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ओके, टेपेटम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंपैरेटिवली अदर थ्री लेयर्स काफ़ी डेंस होता है और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं बिकॉज क्योंकि ये लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को. व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्सिटी अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यूज occupies the center of the each microsporangium. स्पोरेंजियम के सेंटर में हमें बहुत सारे टिश्यूज़ अपीयर होते हैं जो होमोजीनियस हैं, मतलब एक जैसे अपीयर हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज़. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट मीन्स formation of microspores. Okay, microspores, when the sporogenous tissues undergo meiotic division to form microspores tetrads. Okay, look at the picture. आपको tetrads मतलब 4 lobes दिखाई दे रहे हैं सर्कल्स में. जो बटरफ्लाई शेप आपको पिक्चर अपीयर हो रहा है, वास्तव में ये 4 lobes हैं जिनमें pollen grains प्रोटेक्ट होते हैं, pollen grains सुरक्षित होते हैं. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrads. Each one is a potential pollens or microspore mother cells. Got it? The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. बच्चों, पॉलिन मदर सेल्स, अगर हम मदर सेल का नाम ले रहे हैं तो डेफिनेटली मदर सेल क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन करेगी. मियोटिक डिवीजन से जो भी स्पोर्स या गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा. नाउ द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells. The microspore tetrads, as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociates from each other and developed into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. In the माइक्रोस्पोरेंजिया इट मीन्स एक हाउस है. ये वो हाउस जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और वो उसी घर में, उसी हाउस में प्रोटेक्टेड होंगे. कब तक? जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती. जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उनकी जो तीनों आउटर लेयर्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं या रप्चर हो जाती हैं. आफ्टर ब्रेकिंग द लेयर्स, और ये जो पॉलन ग्रेन्स अंदर प्रोटेक्टेड थे वो सब रिलीज़ हो जाते हैं और वो विद द हेल्प ऑफ एनी बायोटिक एजेंट्स, एनी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एजेंट्स, ये अपने अपने जो फीमेल पार्टनर्स हैं या फीमेल पार्ट्स हैं, पिस्टल्स, वहाँ पर जाने के लिए या पॉलिनेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स को देखेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चन सेंड करें.